Persians have worked really hard all night and day. Taking the challenge on the spot without saying no definitely will make our heartbeats go fast and slow. I invite our teacher, Mr. Arshad sir, to kindly join us as a host and boost up this memory show. On podium, first now we have to arrange that bouquet and all, na? Till then I'll talk. Till then you talk. Irfan, Shoaib sir, podium आगे लगा दो. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You have seen that how our students have performed about the numbers and newspapers. News along with headlines and photographs and the name of the people who are there in their photographs. Now, as it was already told that it was their first presentation, now I would like to keep an open challenge. Can anyone tell me the first news which was read by our student? Among the parents, is there anyone? Acha, I would like to ask the parents that what was the page number given to the students by Nizam sir on number 2. See, thank you so much, ma'am. Ma'am remembers that it was page number 8. Page number 8. See, it is not so really very easy as it looks, that the students have been preparing themselves for this presentation for so many days. For day and night they prepare, they memorize, they learn the techniques. It is a game of technique. If you know the technique, you can remember anything. Contact numbers, newspaper, addresses, email IDs, anything you can remember at any time. Now, highlighting or apprising the curriculum, our aim, our objectives, and our motive, that today we have very special guest in the house. That is none other than the Managing Director of MS Education Academy, Mr. Anwar Ahmad sir. I'll request all the parents to give him a round of applause, that he comes every now and then to motivate our children. He interacts with them, he motivates, he appreciates them, he sees that what efforts teachers are putting, he sees what efforts are put forward by these students, and he never fails to appreciate anyone. I would like to tell you that he is an outstanding orator, motivational speaker, that who can inspire anyone with his words and his action by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, one more very important personality is also there, that our director, Mr. Nizamuddin sir. Mr. Nizamuddin sir is the person who take care of everything, all the affairs that are being taken or that are being held at the MS education institutions. Not only in Mumbai, it also in Bhivandi, Mira Road, all the branches of Maharashtra. He takes care of everything, every minute thing he keeps his eye on. Now, I would not be the barrier between you and our motivational speaker, the very important guest of the day. Now, without delaying the program, I would like to invite Mr. Anwar Ahmad sir to come up on the stage and to address our students, parents, teachers, and everyone, and to bless us with the words of wisdom. Everyone give him a round of applause.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज यहाँ इस ख़ास मौके पर मेरे साथ तशरीफ़ लाए मेरे कोलिग डायरेक्टर ख्वाजा निज़ामुद्दीन और यहाँ बैठे मेरे तमाम प्रिंसिपल्स, स्टाफ, बुज़ुर्ग हजरात, मेरे साथी, मेरे दोस्त और मेरी माँ और बहनें, मैं आज सबको मैं अपनी दिल की गहराइयों से आज ये अजीम जो अखलाक शो के नाम पे जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, मैं सबसे पहले तो मेरे स्टाफ मेंबर्स को जो उनकी दिन और रात की मेहनतें और हमारे बच्चों को काबिले बेइंतहा तारीफ़ के जो लायक, मैं मेरे तमाम तलबा को, तालिबात को और यहाँ तशरीफ़ लाई मेरी माँ और बहनें, मेरे साथी, मेरे दोस्त, सभी को मैं अपनी दिल की गहराइयों से बेइंतहा मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आज जो प्रोग्राम है, अगर आपकी मेहनतें ना होती, यहाँ बैठी मेरी माँ और बहनें और हमारी टीचर्स मिलकर इस पे मेहनत ना करते, तो शायद ये आज इतना प्रोग्राम हमारे बच्चे इतना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। आज मैं मुमरा आकर बेइंतहा खुश हुआ। मुमरा में जो टैलेंट मैंने देखा और जब मैंने आते ही जैसे अपने स्टॉल्स का मुशाहिदा किया, मैंने नर्सरी के तमाम बच्चों से अपनी स्टॉल की विज़िट स्टार्ट की। उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हालांकि मैं जिस वक्त गया था वो बिल्कुल आखिरी लम्हात थे, उनके अंदर जो जोश, उनके अंदर जो वलवला था, उसके बाद मैं एक एक करके जो स्टॉल से गुज़रा, वहाँ पे बच्चों के जो प्रिपरेशंस हुए थे कुरान और हदीस की रोशनी में, इस अजीम मौके को समझाने की जो कोशिशें कर रहे थे, काबिले मुबारकबाद हैं वो। मैं यहाँ बैठी हुई तमाम माँ और बहनों से, मेरे भाइयों से और मैं टीचरों से, उन तमाम बच्चों ने जिसने आज ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, उन लोगों के नाम एक ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। और जो मॉडल्स मैंने देखे, जो मॉडल्स के पीछे जो तैयारी की गई थी, वो बिल्कुल काबिल मुबारकबाद थी। जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स को हमारे बच्चों ने बखूब अंदाज से समझाने की जो कोशिश की, रियली अनबिलीवेबल, बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे मैं आगे निकलता गया, मेरा शौक़ और भी बढ़ता गया, बच्चों को और सुनूं। वक्त का दायरा कम था, मगर मैं सुनते जब आ रहा था, एक लड़की को मिस किया। वो लड़की मुझे फिर से वापस मुझे तलब की कि मेरा भी सुनना चाहिए। और जब मैं जाके वो लड़की का सुना, क्या माशाल्लाह उसका कॉन्फिडेंस था, जिस तरीके से उसके समझाने का अंदाज़ था, काबिल मुबारकबाद है। और सबसे बड़ी मुबारकबाद और एक बात की, इस बात की है कि यहाँ बैठे हमारे अपने पेरेंट्स, हमारे अपने टीचरों ने वो आज अजीम काम किया है मुमरा में, जो आम तौर पे एनुअल डे के प्रोग्राम्स पे अपने बच्चों को नचाया जाता है फिल्मी गानों पे,
मगर आपने अल्लाह को राज़ी करने का जो काम किया है इस स्टेज पर, यहाँ पर, ये वाक़ई बहुत मुबारकबाद है। आप लोग बेइंतहा अल्लाह खुश हो रहे होंगे, अल्लाह के नबी खुश हो रहे होंगे कि आज आपके बच्चों ने, नौनिहालों ने जो परफॉर्मेंस दी है, आप लोगों के सीने यकीनन भर आए होंगे। ये बड़ी बहुत ख़ास बात है। हम लोगों ने अखलाक शो को क्यों चुना? अखलाक शो एक वाइड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिस पे अगर हम ऐसे तमाम अखलाक शो भी करते जाएं तो कम है। हर साल कोई ना कोई उन्वान पर इसको लिया जा रहा है और उसके ज़रिए ना ही बल्कि हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है, बल्कि वो बड़ा मैसेज हमारी पेरेंट कम्युनिटी को, सारी सोसाइटी को वो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और उस पर अमल किया जा रहा है। नेचर एक बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह की बेशुमार नेमतों का जिक्र किया गया है। आज इस अखलाक शो में अल्लाह की बड़ी अजीम नेमतों का जिक्र किया गया है। अगर मैं कुरान की आयत फबीअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह हमसे क्या कहता है? तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? हमसे मुखातिब होकर कह रहा है, कुरान हमसे कह रहा है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अगर आसमान के तरफ देखो तुम्हें खुदरत नजर आएगी, जमीन के तरफ देखो तुम्हें खुदरत नजर आएगी, बड़े बड़े पहाड़ों के तरफ देखो तुम्हें खुदरत नजर आएगी, समंदरों के तरफ देखो तुम्हें खुदरत नजर आएगी, वो चरिंद परिंद दरिंद को देखो खुदरत नजर आएगी। क्या हम उसमें से कोई राई के दाने के बराबर चीज को बना सकते हैं? वो अल्लाह है। अल्लाह हमें अजीम नेमतें देकर, ये सारी नेमतें किसको दिया है अल्लाह पाक? ये सारी दुनिया कायनात किसके लिए बनाया है? उम्मत मोहम्मदिया के लिए बनाया है, सारी इंसानियत के लिए बनाया है। और इसका जिक्र कहता है, तुम मेरी नेमतों का जितना शुक्र करोगे तो तुम्हें उतनी ही नेमतें और मिलेगी। तो माशाल्लाह आज आपके बच्चों ने किया, अल्लाह को राजी किया, अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया, पानी के इसराफ के बारे में बताया, चरिंद के बारे में बताया, दरिंद के बारे में बताया। अगर मैं आपको कहूं आज मीडिया क्या कह रहा है, अखबारात क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कह रही है, हम तो समंदर के पानी को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, समंदर का पानी तो आपके इस्तेमाल के लायक नहीं है। अल्लाह पाक ने जितना समंदर का पानी बनाया उसका 3% पानी मीठा बनाया है। और आज अखबारात लिख रहे हैं, मीडिया लिख रही है, बहुत जल्द चेन्नई जैसे बड़े स्टेट में, हैदराबाद जैसे और भी कई स्टेट्स के नाम लिए गए, पानी की सतह कम हो रही है, पानी कम होने वाला है, पानी का शॉर्टेज होने वाला है, पानी को आने वाले दिनों में तिजोरी में रखा जाएगा। क्यों? ये क्यों कहा जा रहा है? आज हम पानी की अजीम नेमतों को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। हम आने वाली जनरेशन को पानी सेव नहीं कर रहे हैं, हम अपने आने वाले बच्चों को पानी नहीं बचा रहे हैं। वो मेहनती आज यहाँ नेचर की जो अखलाक शो बनाने का मकसद क्या था, अखलाक शो नेचर का मकसद क्या था? वही मैसेज सारी आलम को देने का था। एमएस के डाइस से एमएस के पेरेंट्स को ही नहीं जा रहा ये मैसेज, मैं तो कहूंगा ये मैसेज सारे ऑल इंडिया लेवल के लिए जा रहा है। अगर हम पानी नहीं बचाएं, हम अगर दरख्त को नहीं बचाएं, हम नेचर को नहीं बचाएं, अगर दरख्तें काट दें, पानी को बेतहाशा इसराफ कर दें, क्योंकि अल्लाह के नबी खुद फरमाए हैं, तुम अगर पानी को बेतहाशा इस्तेमाल करोगे तुम्हें अल्लाह के पास ठहर कर पानी का भी जवाब देना पड़ेगा। अपने वजू के लिए पानी जितना चाहे उतना ही इस्तेमाल करें, ना कि बेजा इस्तेमाल करें। हम एनर्जीज को सेव करें, अल्लाह की नेमतों को सेव करें, दरख्त ना काटें, पौधे लगाएं। आपको पता है जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो रहा है? पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन से किसको नुकसान हो रहा है? पोल्यूशन से हमें नुकसान हो रहा है।
पोल्यूशन से हमारी नस्लों को नुकसान हो रहा है। आज बीमारियां क्यों फैल रही हैं? आज सारे आलम में बीमारियां क्यों फैल रही हैं? अल्लाह की नेमतों का शुक्र हम खत्म कर दिए हैं। जो चीज खानी है उसके अगेंस्ट जाकर खा रहे हैं, इसलिए वायरस आ रहा है। जो चीज खाना सुन्नत है, जो चीज खाना जायज है, कुरान ने वाज़े फरमा दिया ये चीज खाने की है, ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है। हराम को भी जब हलाल के दस्तर पे रख दिया जाएगा, टेबल पे रख दिया जाएगा, तो जाहिर है बड़े बड़े अल्लाह के अजाब जरूर आएंगे। हमको आज समझने की जरूरत है, यह अखलाक शो यूं ही नहीं बनाया गया, इसके पीछे एक बड़ा मकसद था और वो कॉन्सेप्ट को हमने देने की कोशिश की। माशाल्लाह आज वो हमारे बच्चों ने उसको जस्टिफाई किया, मुझे अच्छा लगा। पानी के बारे में जिक्र एक बच्ची कर रही थी। एक शख्स आया, कुएं में उतरा, पानी पिया, जब बाहर आया देखा वहां पे एक कुत्ता था। वो स्टॉल्स पे बच्ची समझा रही थी, कुत्ता था ठहरा हुआ। उस शख्स ने देखा और वो कीचड़, जो कीचड़ होता है गंदा, उसमें अपनी जबान को लगा के चाट रहा था। तो शख्स ने देखा कि शायद ये कुत्ते को भी प्यास लग रही है, तो फिर वो कुएं में गया, अपने मोजे में पानी लिया, लाकर उस कुत्ते को पानी पिलाया और वो कुत्ता पानी पिया। क्या देखते हैं, अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को पानी पिलाने के एवज में अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। यह खुशखबरी उसको मिली है। कितने हमारे अल्लाह प्यारे हैं, कैसे कैसे अमल करने पे हमें जन्नत मिलती है। आज वो बच्चे ने नहीं बल्कि वो सीखे हैं, हमें भी मैसेज दिए हैं कि हम लोगों को पानी पिलाएं, जरूरतमंदों को पानी पेश करें। सबसे अजीम सदका, सबसे बड़ा सदका पानी पिलाना है। हम में से नहीं करते। ऐसी चीजों का हम मैसेज लेकर आगे कोशिश करें, ये दुनिया को डूबने से बचाएं, ग्लोबल वार्मिंग से बचाएं। ग्लोबल वार्मिंग कोई और चीज नहीं है, वो हम खुद अपनी दुनिया को गर्क करने पे बैठे हैं। पोल्यूशन एयर की जो है, आपको पता नहीं, जमीन और आसमान के बीच में कुछ अल्लाह ने ऐसी लेयर्स रखी, ना मेरी आंखें देख सकती, ना किसी इंसान की आंख देख सकती, जिसको कहते हैं साइंसदान ओजोन लेयर्स कहते हैं, ओजोन लेयर्स। वो क्या कर रहे हैं, सूरज से कुछ ऐसी शुआएं आती है जो अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं, जो मुजीर हैं, नुकसानदेह हैं। ओजोन लेयर्स उसको रोकते हैं। हमें नहीं पता। आपको बांधकर खुश, बहुत सारी खुदा की नेमतों को अगर मैं कहूं, अगर अल्लाह ने वो बीच में ब्रेक्स ना लगाए होते, तुम्हें पता नहीं, एक पानी की बूंद जब आसमान से निकलती है, बुलेट भी उसके सामने काम नहीं करती। बुलेट वो गोली की तरह तेजी से निकलता है। पानी का खतरा, अगर वो खतरा कहा गया है, अगर वो खतरा सीधा तुम्हारे सरों पे गिरता तो तुम्हारे सरों में सुराखें पड़ जाती, तुम्हारे सरों में सुराखें पड़ जाती। अल्लाह कहते हैं हमने ऐसी सतहें बनाई हैं, वो सतहें ऐसी बनाई है, वो खतरा गिरते गिरते वो सतहों पे आके गिर के लास्ट में जब आपके सर पे गिरता है, बिल्कुल उसकी रफ्तार बिल्कुल धीमी हो जाती है, जो तुम्हारे सरों को डैमेज नहीं करती। वरना वो रफ्तार से गिरी हुई खतरा, एक पानी का बूंद तुम्हारा सर फाड़ सकता था। तो हम अल्लाह की नेमतों का कितना शुक्र अदा करें, कम है। आज माशाल्लाह खुद आप लोग खूब माशाल्लाह यहाँ पे मुबारकबाद इसलिए हैं कि आपने अपने बच्चों की तालीम की फिक्र उस अल्लाह को राजी करने के साथ की, जहां आज स्कूल में यहाँ पे दुनिया के बेहतरीन मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीन को सिखाने का जो निजाम बना, वो माशाल्लाह आज आपके बच्चों को मिला, आपको मिला तोहफे में। अभी मेमोरी शो देखे, ये कोई ख्वाब नहीं था, ये कोई ट्रेनिंग पहले से देकर उनको पढ़ा के ला के आपके सामने नहीं पेश की गई। नंबर्स आप ही से लिए गए, वो नंबर्स को इन्होंने लौट कर आपके सामने दिया। मैं और आप कर भी नहीं सकते वो टेक्निक को जब तक नहीं जानते। वो अखबार की पेजें पढ़े, वो पेजों को याद रख के आके आपके सामने मुजाहरे दिए। इमेजिनेशन से बाहर है। मैं अगर अखबार पढ़ के 4 पन्ने पढ़ के आके बैठा तो फिर मैं कौन सा पन्ना पढ़ा था मुझे खुद याद नहीं रहता, क्योंकि इंसान भूलने की आदि रखता है, उसकी फितरत में है।
मगर हम एमएस का मैनेजमेंट, एमएस का स्टाफ इस बात की फिक्र किया है कि तालीम के निज़ाम को कैसे आसान किया जाए, बड़े बड़े सवालात को कैसे आसान करके हल किया जाए। कौन सी वो टेक्निक है जो टेक्निक्स हमारे बच्चों को सिखाने पे बच्चे हमारे सीखकर माशाल्लाह अच्छे सलाहियतमंद के जो है हायल हो सकते हैं। मैं अपने स्टाफ को सलाम करता हूं, उनकी दिन और रात की मेहनतों को मैं दिल की गहराइयों से उन्हें दुआएं देता हूं। मैं पेरेंट्स से चाहूंगा कि उनके हक में भी एक तालियों से आप उन्हें जो है अपने जो है नवाजिए। हक बनता है उनका ये। आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर काम कर रही है। और बच्चों के माशाल्लाह जो पेजेस से उन्होंने सुनाया वो भी इमेजिनेशन के बाहर थे। और एक बात आप सुन लीजिए, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, उसके अंदर 100% खूबियां ढूंढना गलत है। हर इंसान के अंदर खूबियां भी है, कमजोरियां भी है, मेरे अंदर भी है। मैं 100% परफेक्ट नहीं हूं। दुनिया का कोई शख्स 100% नहीं है। तो इसलिए हम बच्चों की सलाहियतों को उनके मार्क्स से ना जज करें, उनके मार्क्स से उनको रिलेट ना करें। यह देखें कि बच्चे के अंदर नॉलेज है कि नहीं, बच्चे के अंदर प्रेजेंटेशन की सलाहियत है कि नहीं, बच्चा बोल सकता है कि नहीं, यह देखें। अगर इस तरीके से माँ बाप देखेंगे, इससे हो क्या रहा है, आज हर पेरेंट मेरा बच्चा ही टॉप करें, मेरा बच्चा फर्स्ट आए। फर्स्ट आने की गुंजाइश कितनी होती है, चाहे वो रनिंग रेस हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो पढ़ाई का मैदान हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, या लेमन रेस हो। हम ये देखते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची फर्स्ट आए। हम उसको क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, व्हाट वी आर टीचिंग टू देम। हम उनको सेल्फिश बना रहे हैं। वो जब बड़े होते हैं, 20-22 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, तो वो हमारे सिखाए हुए चीजें जब बड़े होते हुए लेते हैं तो उनके अंदर सेल्फिशनेस आती है। इस्लाम इसकी इंकरेज नहीं करता। इस्लाम चाहता है कि तुम इस अजीम दुनिया में इसलिए आए हो, तुम अल्लाह के क्या है, खलीफा हैं। यू आर खलीफा हियर। तुम्हें एक काम दिया गया है, अच्छाइयों को आम करो, बुराइयों से रोको, तभी तो तुम दुनिया में कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। हमें अपने बच्चों को सेल्फिश नहीं बनानी है। आप मायूस मत हो। आप अपने बच्चों के मार्क्स देखकर कभी मायूस मत होना। 60%, 70%, 80%, डोंट डिसअपॉइंट योरसेल्फ। आप हमेशा अपने बच्चों को इंकरेज करते जाइए और उनके अंदर जो सलाहियत हैं, आप जानकर यह भी बड़ी हैरत बात होगी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिसर्च बेस्ड कुछ बातें मेरी सामने आती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो बच्चे पैदाइशी थोड़े जब बड़े होते हैं, जब नर्सरी जैसी क्लास में पहुंच जाते हैं, वहां से लेकर उनके पूरा जो प्री प्राइमरी लेवल तक या उसके आसपास तक, उनके अंदर 1,25,000 क्वेश्चंस पूछने की सलाहियत होती है। उस पे कंडीशन ये है कि प्रोवाइडेड इफ यू गिव देम द राइट आंसर, इफ यू ऑलवेज इंकरेज देम। आप जस्ट उनको इंकरेज करते जाइए। आप कभी ऐसा नहीं देखें, शायद आप देखे भी होंगे, मैं वो बात को आपको याद दिलाने के लिए कहता हूं। बच्चा बैठे बैठे कोई उसको अजीब सी चीज मिलती है तो वो लेकर आपके पास दौड़े दौड़े आता है, पूछता है मम्मा ये क्या है, बाबा ये क्या है। हम उसे कहते हैं आप यहां डिस्टर्ब मत करो बेटा, बड़े बात कर रहे हैं, आप जाओ अपना खेल लो। गलत कर रहे हो, उस वक्त गलती कर रहे हो आप।
वो सही टाइम है टीचिंग का। बच्चा सवाल लेकर उठा, उस वक्त उसको बता दीजिए बेटा इसको पेन कहते हैं, इसे पेन से लिखा जाता है, इसको पेपर वेट कहते हैं, पेपर को रखा जाता है वजन इसके ऊपर, वो इसको बोर्ड कहते हैं। जो भी चीज वो उठाकर लाता है उसके आंसर करने की कोशिश करिए। चलते चलते कभी पूछता है मामा इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। आपको पता करनी चाहिए। कई सारे पेरेंट्स, उन्हें भी पता नहीं होता है, बहुत सारे सवालात का जवाब देना जरूरी नहीं है। पहले जमाने में इंसाइक्लोपीडिया खरीदकर मेहनत कर कर पेरेंट पढ़ाते थे। अब तो इंसाइक्लोपीडिया की भी जरूरत नहीं है, गूगल बाबा आपके हाथ में। आपका स्मार्ट मोबाइल फोन, उस पे जैसे ही आप उस पे जो है आप जो है क्वेश्चन डालोगे, इमीडिएट आपको आंसर मिलेगा, बच्चे को आंसर दे देना। और मोबाइल फोन से हमेशा दूर रखिए। सबसे बड़ी बुरी आदतें मोबाइल फोन की है जो बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है, जनरेशंस को तबाह कर रही है। अगर हम अपने बच्चों को टैलेंटेड बना सकते हैं तो आप उनके सवालात के जवाब देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। देखिए वो बच्चा उस उम्र में, इसलिए कहा गया है कि उसका माइंड पूरा ब्लैंक होता है, इसलिए जो सवाल का आप जवाब देते हो ठीक जगह पे जाकर वो सवाल का जवाब बैठ जाता है, वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसके जहन में उठा हुआ सवाल है। उसका आप जवाब दे दिए, खत्म, उसकी टीचिंग हो गई, उसकी लर्निंग हो गई। ये पॉइंट आप नहीं जानते, इग्नोर कर रहे हो। जो बच्चों को जिस वक्त वो सलाहियत से उनको जागर होना चाहिए और अनजाने में हमसे गलती हो रही हो तो वो ना हो, तो आज से आप बच्चों के हर सवाल का जवाब देना ठीक से, उनसे बिल्कुल आप करीब हो जाइए। मैं अक्सर माँ बाप को देखता हूँ, मुझे वो भी अफसोस होता है, अपना टाइम बचाने के लिए उनके हाथों में मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। आप अपने आप को बिजी कर रहे हैं, उनको मोबाइल एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं, वो मोबाइल पे वो क्या क्या कर रहे हैं आपको खुद भी नहीं पता। मोबाइल कितना अच्छा है कितना बुरा है वो आप भी बेहतर जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। वो गलती से कोई ऐसा बटन दबाएगा तो उसे कैसी कैसी पिक्चरें उसमें पहले आती है वो आप खुद जानते हैं, कैसी कैसी वीडियोस प्ले होती हैं वो आप खूब जानते हैं। अगर वो बच्चा गलती से ऐसी चीज़ों का आदी हो जाएगा तो आप उसको वापस लाना बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप बच्चों से दुश्मनी करते हैं तो आप उसको मोबाइल फ़ोन दीजिए। अगर वाकई आप उसको जो है मोहब्बत करते हैं तो आप उससे मोबाइल फ़ोन से उसे दूर रखिए। एक बात सुन लीजिए, अक्सर आज जो मसाइल बच्चों के हैं, कई लोग आज घरों में परेशान हैं। जैसे जैसे वो उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, अगर उन्हें कुछ कहा जाए तो सुना अनसुनी कर रहे हैं, और आपसे आपकी बातें उन्हें बोझ सी लग रही है, बोरिंग सी लग रही है, तकलीफ हो रही है। ये क्यों हो रहा है? ऐसा होने की वजह क्या है? उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई, रिसर्च करके उसके सॉल्यूशंस निकाले गए। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाले दिनों में आपके बच्चों के ऐसे मसाइल ना हो तो आपको कुछ 3 काम करनी है। करेंगे आप लोग 3 काम? बताऊं आपको 3 काम? कितने लोग चाहते हैं 3 काम सुनना? माशाल्लाह। 3 अहम काम हैं जिसके लिए मैं तो अक्सर कहता हूं माँ बाप उनके लिए उनके बच्चे तो रियल एसेट हैं। रियल एसेट ना बंगला, ना गाड़ी, ना मोटर, ना बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं। वो तो आया भी ऐसी जाएगा भी ऐसी। दिल्ली देख रहे हो आप, दिल्ली में कल तक कोई करोड़पति था, लखपति था, आज कहाँ है? उसका कोई ठिकाना नहीं है। मगर रियल एसेट वो है, रियल एसेट हमारी अपनी औलाद, हमारी अपनी नस्लें, वो रियल एसेट है। उस पर मेहनत करनी है। उसके ऊपर मेहनत करने के लिए डेली 20 मिनट कम से कम निकालें। अगर आपके पास 20 मिनट भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे भाइयों के पास 20 मिनट निकालना भी बड़ा चैलेंज है,
क्योंकि उनके सामने घर के चलाने के मसाइल, दुनिया के जो है तमाम मीट करने के जो है ख्वाहिशात और अपने बच्चों के तमाम फैमिलीज़ के करते करते बेचारे सुबह से लेकर रात के 10-11 बजे तक शायद ही उनके पास उसके लिए वक्त निकल पाता है। माएँ तो माएँ हैं माशाल्लाह, वो घर के काम काज से काफ़ी बिजी। तो मैं दोनों से दरख्वास्त करता हूँ 20 मिनट कम से कम निकालिए, जो क्वालिटी टाइम कहते हैं बच्चों के साथ, रियल एसेट हैं। कम से कम उतना ना कर सके तो 10 मिनट दीजिएगा। 10 मिनट में 3 काम करनी है। 10 मिनट में 3 काम क्या है? केयरिंग, नंबर 1 केयरिंग, नंबर 2 शेयरिंग, नंबर 3 डेयरिंग। मैं एक एक को खोलता हूं। नंबर 1 मैं एक एक एग्जाम्पल के साथ खोलता हूं, आप बाकी की चीजें आपको करनी है। केयरिंग क्या होता है? सुबह में बच्चों को उठाना सबसे बड़ा चैलेंज है स्कूल के लिए। अक्सर घरों में उठाते हैं बच्चों को, उठने में देर करते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में, उठो समझ में नहीं आ रहा, देर हो गई, वो हो गई, कुछ तो भी अनाप शनाप भी बोल देते। वैसे नहीं करना है, क्योंकि सुबह बच्चे के लिए बहुत अहमियत होती है। सुबह अगर उसकी अच्छी हुई, किसी भी इंसान की, बच्चे की नहीं, किसी भी इंसान की सुबह अच्छी हुई तो शाम अच्छी होती है। सुबह खराब हुई तो उसका असर सारा दिन रहता है। अगर बच्चे को दिन में डांट पड़ गई तो उसका मूड शाम तक खराब होता है। वो क्लास में भी झगड़ता है, टीचर्स की भी नहीं सुनता है, नाफरमानी करता है, जिद्दी बनता है, बच्ची भी बनती है, बच्चा भी बनता है। तो करना क्या है? बच्चों को उठाने के लिए उनके या तो बाजू जाके लेट जाइए, या तो उनके करीब जाकर उनका सर को थोड़ा सा सहला के, पीठ थोड़ा सहला के प्यार से बोलो, बेटा टाइम हो गया है, प्लीज उठ जाओ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। थोड़े से ऐसे करो, मोहब्बत से करो। आपके बच्चे भी मोहब्बत के भूखे होते हैं, मुस्कुराते उठते हैं, मुस्कुराते अपनी आंखें खोलकर आपको देखते हैं। तो जब उन्हें अपने माँ बाप का चेहरा देखते हैं तो उन्हें मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा और बच्चे का मुस्कुराता चेहरा आप, तो दोनों भी खुश, आपका भी दिन अच्छा, उसका भी दिन अच्छा। प्यार से अब उसको उठाए, जल्दी से तैयार कराए, नाश्ता कराए। अब उस सारे मामले केयरिंग वाले हैं, वो जा रहा है तो उसको पानी पेश कर दें, उसका नाश्ता करवा दें, हंसते उसको विदा करें और उसको हंसते उसको स्कूल छोड़ दें, तो वो दिन भर खुश रहेगा। अगर उसकी कोई ख्वाहिश की चीज बच जाए तो वो भी बोलिए, बेटा तुम्हारे लिए तो आज ये बनी है, बिस्तर से सुनेगा तो मुस्कुराते उठेगा, मुस्कुराते उठेगी, तो माशाल्लाह उसका दिन अच्छा हो गया। ये केयरिंग का वन ऑफ द एग्जाम्पल है, द बेस्ट एग्जाम्पल। कल से प्रैक्टिस करके देखना, खुद ब खुद मसले हल होते लगेंगे। एक दिन में रिजल्ट नहीं, लगातार करो 2, 4, 5 दिन, फिर रिजल्ट आना दिखाई देगा। शेयरिंग क्या है? ये तो सुबह हो गई। दोपहर में जब स्कूल पूरा करके बच्चे घर आते हैं, घर आए तो उन्हें 1 गिलास पानी देना। वो जब आते हैं तो कुछ ना कुछ, कभी कभी मूड उनके भी कैसे होते हैं नहीं पता, उन्हें तुम प्यार से 1 गिलास पानी देना, वो खुश होकर पानी पियेंगे, मम्मा हमें पानी दी है। आप बैठ कर नहीं करना, वो ड्रेस उतार दो, अपने जो है जूते वहां रख दो, यू जस्ट डू समथिंग। उसके बाद उसके साथ बैठो, खाना दो उसको, उसके साथ बैठ के सुनो, बेटा आज क्या क्या हुआ तुम्हारे स्कूल में, बोलो। तो वो बच्चे सुनाएंगे, सुनो, खाली बैठ के सुनो, कुछ बोलो मत, टोको मत बीच में। तुम ऐसा कहीं को करे, वो क्या हुआ, उसको क्यों मारा, अच्छा उन्हें उसको ऐसा बोला तो तुमने टीचर को जाके बोला, प्रिंसिपल को बोला, उसको बीच में मत बोलो, सुनो खाली क्या हुआ। लेट हिम शेयर, लेट देम शेयर, उनको शेयर करने दो, उनकी बातों को सुनो, जहन में रख लो क्या बात फिर से पलट के पूछनी है। उस वक्त मत डांटो, वरना बोलेंगे नहीं, डांटेंगे तो बोलना बंद कर देंगे, आपसे करीब होना बंद कर देंगे, मोबाइल फोन के दोस्त हो जाएंगे। ये नंबर 2 एग्जाम्पल हो गया। डेयरिंग, आपको पता है, मेरे को पता है, मैंने तो बहुत सारी, मेरी बड़ों की, मेरी नानी दादी, मेरे खालाएं बहुत सारी कहानियां सुनाया करती थी, आज भी मुझे याद करती हैं। तुम खाना नहीं खाते थे, तुम सोते नहीं थे, तो अक्सर हम कहानी सुनाने के बाद ही सोते थे। मेरी खालाएं, मैं आज भी मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे याद कर कर कहती हैं, तुम्हें अक्सर कहानी सुनाना पड़ता था, खाना खिलाने के लिए भी कहानी सुनाना पड़ता था। वो ज़माना तो ख़त्म हो गया, नानियों दादियों का कहानी तो किस्सा आजकल ख़त्म हो गया। मोबाइल फ़ोन खुद स्टोरी बोल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन खुद वीडियो चला रहे, वीडियो थमा दिया जा रहा है, हाथ में बच्चा वीडियो देख रहा है, खाना खिला रहे हैं।
तो आपसे टच वाली बात कहाँ आई, आपसे फीलिंग वाली बात कहाँ आई? आप वो कहानियां सुनाइए जो इस्लाम भी इजाज़त देता है। कुछ सच्ची कहानियां हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो जो है किताबें मिलती है, आप लाइए। सच्ची सहाबा की कहानियां सुनाइए, बहुत सारे वाक़यात सुनाइए। बच्चे सुनेंगे आपसे, कहानी में इमोशन होनी चाहिए, कहानी में टच होना चाहिए। अगर ऐसी कहानियां सुनाएंगे तो उनके अंदर एक शख्सियत बनेगी, एक शख्सियत बनेगी। झूठ पे कहानी सुनाए, झूठ बोलने से क्या होगा, सच्चाई के रिजल्ट क्या आएंगे, अगर किसी की मदद करोगे तो क्या आएगा। कहानियां बोलते जाइए, कहानियां बोलते जाइए, कहानियां से उसकी अंदर शख्सियत बनेगी। वो हो गया डेयरिंग वाला, डेयरिंग आएगी, उसके अंदर डेयरनेस आएगी। ये 3 काम आप करोगे, आपने वादा किया है, इंशाअल्लाह करोगे। इंग्लिश कम्युनिकेशन का बड़ा रोना है। इंग्लिश हमारा बच्चा बात नहीं करता, कैसे करेगा? स्कूल में इंग्लिश बात कर लिया, घर में क्यों नहीं माहौल देते? घर में टूटा फूटा छोटा मोटा माहौल देने की कोशिश करिए। यू ट्राई योरसेल्फ। बेटा कम हियर, बेटा व्हाई डोंट यू ईट फूड। छोटे छोटे जुमले आप याद कर लीजिए। माशाल्लाह मेरी माँ बहनें कुछ तो पढ़कर है, कुछ माएँ 7th 8th 10th माशाल्लाह ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ मेरे भाई भी हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, आप छोटे छोटे जुमले, मीडियम आपकी कुछ भी हुई होगी, उर्दू थी, कोई और मीडियम थी, आप इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बच्चों के लिए सीखिए, उनके साथ इंटरेक्शन कीजिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो दे विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश इंशाअल्लाह। और आप खुशखबरियाँ सुनाने के कुछ मौका है, मैं आपको कुछ खुशखबरियाँ रख के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बट आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्रेस ऑल दोज थिंग्स। वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर हियर, that is our MS mashallah has already entered in the Guinness Book of World Records. वो हमारा ख्वाब था, अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरी टीचरों की मेहनत, मेरे पेरेंट्स की दुआएं, आप हजरात की दुआएं, तमाम वेल विशर्स की दुआएं, हमारे बड़ों की दुआएं और हमारी दिन और रात की मेहनतें, आपके बच्चों ने वो कारनामे कर दिखाए। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एमएस का नाम पहुंच चुका है माशाल्लाह। हमारा विजन भी वही है, वी वांट टू गिव द कंट्री ग्लोबल आइडियल सिटीजन्स, ग्लोबल आइडियल सिटीजन्स कह रहा हूं मैं, यही तो सिखाए हम आज। आइडियल कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन जैसा आइडियल ना है ना होगा। हमारे बच्चे उनसे सीखी हुई सुन्नतें अपनी जिंदगियों में जब अपनाएंगे और मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करके जब जाएंगे तो क्या कुछ नमूने नए पेश करेंगे। तो हम चाहते हैं इस कंट्री को, इस मुल्क को हम गुड कंट्रीब्यूटर्स देना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर्स देना चाहते हैं, अच्छे इंजीनियर्स देना चाहते हैं, अच्छे साइंटिस्ट देना चाहते हैं, अच्छे इंसान देना चाहते हैं जो इस मुल्क को चलाने वाले बने, इस संविधान को बचाने वाले बने। इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी लड़ाइयाँ अपने बड़ों ने भी दी थी, अपने बच्चों के अंदर भी उस कुर्बानियों के अंदर उनके अंदर वो जज्बात को देने वाले बने। सारी इंसानियत के लिए काम करने वाले, सारी इंसानियत के अंदर फैल के काम करने वाले, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन एंड द कॉस्ट, कोई भी मजहब और मिल्लत का फर्क ना करते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीकों से सारी इंसानियत के लिए काम कर कर वो मुकाम हासिल करेंगे कि यस मुसलमान ऐसा होता है, ट्रू मुस्लिम, ही इज ए ट्रू मुस्लिम, शी इज ए ट्रू मुस्लिम। हम ऐसे सिटीजन देना चाहते हैं, हमारे एमएस के जरिए हम ऐसे बच्चों को देना चाहते हैं, हम आपका साथ चाहते हैं इसमें। और मेरी यहाँ पे कुछ गुजारिशात आई थी, एक बात एक बताते हुए मैं आखिरी बात रखता हूँ। काबिल मुबारकबाद आप लोग हैं, ना ही एमएस मुमरा में ख़ास तौर पे करिकुलम वाला काम हुआ है, को करिकुलम वाला काम भी बहुत कुछ हुआ है। मैं इस डाइस से मुबारकबाद देता हूँ पेरेंट्स को और टीचर्स को, वो तमाम बच्चों को। आपको मालूम है अबाकस की एक ट्रेनिंग होती है, अबैकस की ट्रेनिंग आपने जो जानते हैं, मेरे भाई जानते हैं, मेरी बहनें जानती हैं, जो फास्ट कैलकुलेशंस होते हैं अबैकस के ज़रिए, वो उसकी ट्रेनिंग माशाल्लाह बच्चों को दी गई है, बच्चे सीखे हैं और उसके ज़रिए बच्चों ने माशाल्लाह उसमें उन्होंने नंबर 1 प्राइज़ जो है उन्होंने हासिल किया है।
तीनों प्राइज हमारे बच्चों को ही मिले हैं। फर्स्ट भी हमारे कोई, सेकंड भी हमारे कोई, थर्ड भी हमारे कोई। मुबारक है आप सबको। और ताइक्वांडो जैसी माशाल्लाह एक मार्शल आर्ट जो ट्रेनिंग है उसमें भी माशाल्लाह जो है बुशरा जैसी बच्ची माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मुबारक ये भी आपको। ये मुमरा में हुआ है, कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके अपने बच्चों ने किया है। एस्से रेटिंग कंपटीशन पूरे स्टेट में यहां हुए जो इंग्लिश में माशाल्लाह, उसमें जीनत नाम के जो है फर्स्ट प्राइज हासिल की इंग्लिश में माशाल्लाह। क्या बताइए, टीचरों ने मेहनत नहीं किया? क्या हमारे ये प्रिंसिपल ने मेहनत नहीं किया? क्या आप लोगों की मेहनतें रिकॉग्नाइज नहीं हो रही? जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, मेरी टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है, मेरी तमाम लोगों की, मेरे भाइयों की दुआएं हैं, उनकी दिन रात की दुआएं कोई रहेगा नहीं। आप ये मत देखिए कि मेरे बच्चे को क्यों नहीं मिला, ये उम्मत का लड़का या उम्मत की लड़की, वो आप ही की बेटी है, वो आप ही का बेटा है। मैं खुश होता हूं। आज आपको पता होना चाहिए एक CSR एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हिंदुस्तान से लड़कों को उठा रहे हैं। 30 लड़कों को हमने उठाया, एक एक बच्चे के पीछे 4.5 लाख रुपए का खर्चा किया। और वो CSR सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने उठाया। हिंदुस्तान के अंदर वो टैलेंट टेस्ट हमने कंडक्ट किए और उसमें 5 बच्चे प्रीलिम्स में कामयाब हुए। 5 बच्चों में प्रीलिम्स UPSC जैसी एग्जामिनेशन में कामयाब हुए। उसमें माशाल्लाह एक बच्चा मेंस में कामयाब हुआ, वो मेंस के भी इंटरव्यू दे के आया। आज मैं वो बच्चे के कामयाबी के अंदर मेरे बेटे की कामयाबी देखता हूं, मेरी बेटी की कामयाबी देखता हूं, उम्मत के लड़के और लड़कियों की कामयाबी देखता हूं। अगर वो लड़का कल IAS IPS बनेगा तो आज ऐसे हालात में हमें हमारा जो बच्चा ठहरेगा तो वो बिल्कुल अदल और इंसाफ का काम करेगा, सच्चाई का काम करेगा, एक बेहतरीन एग्जाम्पल बन के जो है एक ट्रू मुस्लिम बन के काम करके क्या कुछ मिसाल कायम कर सकता है। हम ऐसे सिटीजन तैयार करना चाहते हैं। मुझे क्या जरूरत है वो पैसा खर्च करने की, मैनेजमेंट को क्या जरूरत है, मगर ये उम्मत की बका के लिए हम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, आज गिनाने का वक्त मेरे पास नहीं है। मैंने ये बात कह दी। अब मेरे स्टाफ ने जब से ये साल एकेडमिक ईयर आया, हमारी जो है प्रिंसिपल को भी, हमारे जो है यहाँ पे बैठे हुए पूरे HMs को, मेरे स्टाफ को अल्लाह बहुत अच्छा रखे उनको। वो दिन रात हमारे पीछे लग गए, सर हालात अभी ख़राब हैं, हमारे पेरेंट्स एफोर्ड नहीं कर सकते, इस साल उनके लिए कुछ करिए, उनके लिए कुछ खुशखबरी दीजिए, उनको कुछ तो आप करिए। हम जानते हैं मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा मसला है, ये मैनेजमेंट के लिए बड़े चैलेंज हैं। हम वो काम हम रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, मगर हालात से हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमने उनकी बातों को बहुत सुना, मैनेजमेंट की पूरी बॉडी में उसको बात को रखा गया। 2-3 बार बहुत डिस्कस की गई। वो हालात फाइनेंसिस के उतने स्ट्रांग नहीं थे, मगर इनकी रिक्वेस्ट को, आपकी दी हुई तमाम रिक्वेस्ट को हम पीछे नहीं करते हुए ये कुछ डिसीजंस खास लिए हैं। मैं आपके साथ आज इस खास मौके पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए, इस साल कोई फीस में इजाफा नहीं हो रहा है। मुबारक है आपके लोगों के लिए। और हम यहां नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि सर और भी कुछ करनी है। आपको पता है जो यतीम लड़के और लड़कियां होती हैं उनका कोई नहीं होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम यतीमों पे शफकत करोगे, यतीमों के सर पे हाथ फेरोगे, उनके सर पे जितने बाल होंगे अल्लाह तुम्हें उतना अजर देगा। तो हम सोचे कि भाई अगर अल्लाह को राज़ी करने का इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है। हम लोगों ने माशाल्लाह नहीं यहाँ के लिए बल्कि पूरे हमारे जितने इदारे, सभी इदारों में हमने इस साल ये अनाउंस किया कि जो भी आर्फन बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनको 67% फीस में माफ़ी दे दी गई है ताकि वो बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, कौम व मिल्लत के लिए एक ढाल बने, अपनी फैमिली के लिए हेल्पिंग हैंड बने। तो हमने ये काम को हमारे पास ये बोर्ड ने किया है। और कुछ बच्चे हुफ़ाज़ हैं, हाफिज़ कुरान हैं, हाफिज़ कुरान का एहतराम करना चाहिए।
जो बच्चे हिफ्ज करते हैं, जिनके सीने में कुरान है, उनके लिए भी कुछ रिवार्ड्स दिए जाएं, हौसला अफजाई की जाए, ताकि उम्मत में शऊर आए कि बच्चों में हाफिज बनने का एक शऊर आए, लोगों में शऊर आए कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। इसलिए वो उनको इंकरेज करने के लिए हम लोगों ने, जो चाहे वो लड़की हो या लड़का, 25% उसको फीस में कंटिन्यूस, जब तक वो स्टडी करेगी उसके 25% फीस उसकी माफ होगी। और मेरे उल्मा, हमारे जो उल्मा सरपरस्त थे, कौम मिल्लत के जो सरपरस्त हैं, आज उनको हम, उनके बच्चों के तालीमी हालात को हम पीछे नहीं रख सकते। हम कॉमन स्ट्रीम में उनके बच्चों को लेने के लिए बाकायदा 50% फीस उनको भी जो है माफ कर दी गई है। वो उनके बच्चे 50% उनको फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक खुशखबरी और है, जिसके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके लिए भी चैलेंजेस हैं। प्रिंसिपल बार बार वो हुआ था कि जब जो है बार बार रिक्वेस्ट करके, सर ये भी बस नहीं होता, सर और सर और सर और, तो फिर 25% थर्ड चाइल्ड से, तीसरे बच्चे से, या बच्ची या तीसरा बच्चा उनका अपना खुद का अगर एमएस में पढ़ता है तो उसकी फीस हमेशा हमेशा जब तक तीसरा बच्चा पढ़ता रहेगा वो फीस माफ कर दी गई है, ताकि बोझ कम हो, पेरेंट्स पे बोझ कम हो। और साथ में जो है एक स्कीम और लाई गई है। कुछ मुस्तहिकीन हैं जो अपने आप को इजहार नहीं कर सकते, उनको एक एप्लीकेशन देना है, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं है। उसमें 2 चीज़ें रखी गई है। एक तो बैतुल माल से कुछ ज़कात वाला अमाउंट रखा गया है, उसको एप्लीकेशन देकर उसके वोचर्स लेकर अपनी फ़ीस में जमा करवा सकते हैं। उसका एक फ़िक्स अमाउंट बॉडी डिसाइड करती है, वो दे दिया जाएगा, वोचर दे दिया जाएगा, वो फ़ीस पे जमा कर सकते हैं। दूसरा चैरिटी वाला फंड है, जिसमें हम मैनेजमेंट कुछ चीज़ें करने के लिए, जिसके फाइनेंसेस हालत ख़राब हैं, वो प्रिंसिपल से मिलकर दरख्वास्त देते हैं, तो उन्हें भी कुछ फीस में रियायत करी जाएगी, उन्हें भी जो है कुछ रियायत दी जाएंगी जिसके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं है। मैं ये तमाम स्कीम्स इसलिए अनाउंस किया हूँ कि हमारे उम्मत के लड़के और लड़कियाँ इससे फ़ायदा उठाएं, आप पे बोझ कम हो, आप पे बोझ कम हो, ताकि बच्चे बच्चियाँ पढ़ने से महरूम ना हो। हमने स्टैंडर्ड्स को लाने की मेहनत की, हमने दिन रात माइंड मैपिंग जैसी टेक्निक्स, मेमोरी जैसी टेक्निक्स, पढ़ाई को आसान करने वाली टेक्निक्स ये लाना, इसके ऊपर मेहनत करना, इसकी प्रैक्टिसेस करवाना, ये आम बात नहीं है। आम पढ़ाई तो कहीं भी होती है। एमएस की खुसूसियतें ये हैं, माइंड मैपिंग की ट्रेनिंग है, मेमोरी ट्रेनिंग है, ये खुसूसियतें कहीं और भी हमारे बच्चों को नहीं मिल सकती। उनको इस चीज़ों से महरूम ना करें, इसलिए सारे इक़दाम लिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम बहनों भाई यहाँ जितने बैठे हुए हैं उससे पूरा मुस्तफ़िद हो। और लास्ट में मैंने वो स्कीम फ्री एडमिशन वाली, और एक खुशखबरी आपके लिए, फ्री एडमिशन हम दे रहे हैं, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। वो स्कीम ख़त्म हो चुकी थी, मगर ये प्रिंसिपल और ये स्टाफ ठहर कर कहता है, कई सारे पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं था ये स्कीम थी और स्कीम ख़त्म हो गई। वो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर आज ये फंक्शन के मौके पे अगर आप उसको एक्सटेंड कर देंगे तो मुनासिब होगा। तो मैंने तीनों फंक्शंस में भी उसको अनाउंस किया है। ये मैं 14 तारीख तक वो फ्री एडमिशन वाली स्कीम को जारी रखता हूं, ताकि आपको कोई भी पैसे नहीं दे कि आपके बच्चों की एडमिशन करवा सकते हैं, जो अपनी रेगुलर फीस जमा करके एडमिशन का कोई पैसा आपको देनी नहीं होगी। ये भी आप उससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। भाई आपसे आखिरी में मैं कलमात से अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। आज उम्मत के जो नाजुक हालात हैं, चाहे वो किसी भी तौर पे हों, आप और हम जानते हैं तालीम ही हमारे बच्चों का हथियार है। अगर हम तालीम अच्छी दिलाने में नाकाम रहे तो हम आगे भी नाकाम होंगे। भाइयों बहनों, मेरी बहनों, मेरी माओ, इस बात को समझ लो, अगर आज हमारे बच्चों को हम अच्छी तालीम से आरास्ता नहीं करेंगे, अच्छी तरबियत से आरास्ता नहीं करेंगे, तो ये आने वाले दिनों में
कौम और मिल्लत के बेहतरीन असेट नहीं बनेंगे। हमको इस कंट्री को, इस मुल्क को, ये हमारा अपना मुल्क है, यहाँ के हम पैदाशी हैं, हम ये अपने मुल्क को अपने खून पसीने से सींचा है, हमारे बड़ों ने इसके लिए जानें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। हम उसको ज़ाय ना होते हुए, ज़ाय ना करते हुए हम अपने बच्चों की सलाहियतों को बेहतरीन बनाकर उनकी तालीम पे, उनकी तरबियत पे बेहतरीन निगरानी कर कर हम ऐसे बेहतरीन टैलेंटेड तमाम प्रोफेशनल्स इस कंट्री को देंगे, इस मुल्क को देंगे। इस मुल्क की तरक्की हम देखना चाहते हैं, इस मुल्क का अमन और शांति देखना चाहते हैं, सुकून देखना चाहते हैं, जिसके लिए दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी। आप दुआएं भी करें, मेहनत भी करें, क्योंकि माएँ ही हैं जो औली अल्लाह को बनाई है, माएँ ही हैं जो बड़े बड़े जो है शहीद बनाए हैं, जो माएँ ही हैं जो बड़े बड़े जो है कामयाब इंसान को बनाए हैं। मैं मेरी माँओं से दरख्वास्त करता हूँ, आप अज़्म कर लीजिए, यकीनन मेरे बच्चा या मेरी बच्ची इस मुल्क की शान बनेगा, इस मुल्क की आन बनेगा। इस अज़्म से आज उठ कर जाना है आपको, ये तय कर कर यहाँ से निकलना है। इंशाअल्लाह हम ये लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे और इस मुल्क की शान को भी बचाएंगे, इसकी आन को भी बचाएंगे। बस ये वादा करके जाइए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सर। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। Dear parents, as I had already told you that he is very keen, very sincere about our children, our community, our ummah. I would like to thank Mr. Anwar Ahmad sir for his words of wisdom, pearls of wisdom. Thank you so much sir. Jazakallah khair. One more thing that I would like to thank Wasim sir for Bhiwandi, that who had arranged all the costumes for the boys today. The beautifully designed, made costumes for our students, which you have already seen, and many more are yet to be seen. Jazakallah khair. Thank you so much. Hold on your seats. Many more programs are there. Enjoy. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.